हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अभी तक हम जो 6 क्लासेस कर चुके हैं, 6 चैप्टर, 3 फॉर मैथ एंड 3 चैप्टर्स फॉर साइंस, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे। अभी सितंबर एग्जाम कुछ स्कूलों में चल रहे हैं, कुछ में होने वाले हैं। आई एम श्योर आप फुल 100% मार्क्स ला सकते हो। और जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट यू। और आप इसी तरीके से प्रिपेयर करते रहिए, साथ साथ मिलकर सक्सेस ऑब्टेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इफ 1/2 is a root of equation x square plus kx minus 5/4 is equal to 0. 1/2 is a root. Root means the value of x. Then value of k is, we have 4 options: 2, -2, 1/4 and 1/2. Check करते हैं. Equation is x square plus kx minus 5/4. If root is 1/2 means value of x 1/2 put कर लेते हैं. So 1/2 square is 1/4 plus k/2 minus 5/4 is equal to 0. Then value of k will be k/2 is equal to 1/4 minus 5/4 is minus 4/4, that is 1. So k/2 is equal to plus 1 and k is equal to 2 into 1 is 2. So option A answer is 2. Second question, find the root of 3x square plus 6 under the root is equal to 9. तो इसका पॉजिटिव रूट आपको फाइंड आउट करना है। पॉजिटिव रूट फाइंड आउट करने के लिए इसको फैक्टराइज करना है, उससे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये रूट इधर से कट जाएगा और 9 स्क्वायर हो जाएगा। सो 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 81 बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी ऑब्टेन दैट। सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 6 इज 75. सो x स्क्वायर इज 3 से डिवाइड करेंगे 25, x इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 5. वी हैव टू फाइंड द पॉजिटिव रूट. सो पॉजिटिव रूट ऑफ x इज plus 5. So answer का ऑप्शन है और आंसर है plus 5. Now third question, 2x square minus kx is equal to plus k is equal to 0, and for equal roots, for what value of k this equation has equal roots? Equal root means b square minus 4ac is equal to 0. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. minus k square minus 4 into a into c, b square minus 4ac is equal to 0. So minus k square is k square minus 4 to the 8, 8k is equal to 0. Now taking k as common, we will get k minus 8. So if product of two numbers is 0, one of them must be 0. So either k is equal to 0 or k minus 8 is equal to 0. If k minus 8 is equal to 0, k would be 8. So 0 and 8 will be answered. So we have option number D. Question number 4. Find the value of k if the quadratic equation 3x square minus k root 3x plus 4 is equal to 0. And we know for real roots, real में दोनों आ जाएंगे, equal roots भी और distinct roots भी. For equal root, b square minus 4ac is equal to 0, and for distinct roots b square minus 4ac is greater than 0. But दोनों ही रियल है, तो रियल के लिए हम साइन लगाएंगे b square minus 4ac is greater than or equal to 0, and implies that b square minus 4 into a into c is greater than or equal to 0. So minus square plus k square root 3 ka square 3 minus 4 4 is 16, 16 3 is 48 is greater than or equal to 0. So 3k square is greater than or equal to 48, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा. So 3 से डिवाइड हो जाएगा. k square is greater than or equal to 16. So k is greater than or equal to 4. So answer is 4. n square plus n square into x square minus 2 into mp plus nq into x plus p square plus q square is equal to 0 has equal roots. Then we have 4 options. So for equal root we know that b square minus 4ac is equal to 0, b square minus 4 into a into c
minus 2 square is 4. Now mp plus nq whole square is m square p square a square plus b square plus 2 into a to b 2mn pq. Now minus 4 into this 4 into m square binomial to binomial multiply m square p square प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एम स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर एन स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई, प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल ओपन ऑल द ब्रैकेट्स. 4 एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 4 एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 8 एम एन पी क्यू माइनस 4m square p square minus 4m square q square minus 4n square p square minus 4n square and q square is equal to 0. तो क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से? इन सब में से एक ही टर्म कॉमन आ रही है. कुछ कट रहा है तो पहले चेक कर लेते हैं. यस, m square p square कट गया, कुछ तो हल्का हुआ. इधर 4n square q square, ये भी इधर से वैल्यू कट गई. अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो है ये माइनस 4m स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 8mn पी क्यू. ना माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस माइनस 2mn पी क्यू इज इक्वल टू 0. माइनस 4 इधर आके 0 हो जाएगा. हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा. नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो इट विल बिकम mq प्लस np, क्योंकि माइनस 2ab है तो माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट mq माइनस mp इज इक्वल टू 0. सो mq इज इक्वल टू np. हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है? ऑप्शन है हमारे पास mq इज इक्वल टू np ऑप्शन है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बी ऑप्शन इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द रूट्स ऑफ 4 रूट 3x स्क्वायर 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0. हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं. रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मिडल स्प्लिट कर लेते हैं. मिडल स्प्लिट के लिए प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको? प्रोडक्ट होता है a इंटू सी. कितना हो गया? 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 माइनस 24 आपको प्रोडक्ट चाहिए. और सम कितना चाहिए? मिडल टर्म को ब्रेक डाउन करने के लिए सम चाहिए 5. सो 5 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका प्रोडक्ट माइनस 24 आ जाए. सो 8 3 ज़ा 24 सिंपली विजिबल है. 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल रीअरेंज देम. कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में 4x कॉमन है, सो रूट 3x प्लस 2. अब इधर क्या कॉमन है? दोनों माइनस 3 में भी रूट 3 होता है, 2 रूट 3 में भी रूट 3. हमारे पास ऑप्शन है रूट 3 इंटू रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. So root 3x plus 2 into 4x minus root 3 is equal to 0. So x is equal to minus 2 by root 3 और x is equal to root 3 by 4. ये 2 ऑप्शंस हैं जो हमारे पास जीरोस हैं. क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में 2 2 3 3 के पेयर में चल रहे हैं. आप पहले पॉज करके उन क्वेश्चंस को सेल्फ असेसमेंट करके देखिए आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं ताकि एंड में आप खुद को मार्क्स दे सकें. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नेचर ऑफ रूट के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट करके आप चेक करिए. इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन रूट पॉसिबल टू डिस्टिंक्ट रूट equal to 0 equal roots, and if it is less than 0 no real roots are possible. आप easily find out कर लोगे.
8th question, we have 4 parts and which of the following is not a quadratic equation. कुछ बार ऐसा होता है कि देखने में लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन एक्चुअल में नहीं होती, तो बिल्कुल आप इल्यूजन में मत जाना, आप एक एक पार्ट को सॉल्व करके देखना और लास्ट में जब आपको ऑब्टेन हो जाएगा तब पता लगेगा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। एक सैंपल मैं आपके सामने कर रहा हूँ। 2 into x minus 1 whole square is equal to 4x square minus 2x plus 1। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? देखने में लग रहा है कि होगी ही, पर चेक कर लेते हैं कि है या नहीं। तो ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 2 into x minus 1 whole square is a square plus b square minus 2 into a into b is equal to 4x square minus 2x plus 1। ब्रैकेट ओपन करिए, 2x square plus 2 minus 4x is equal to 4x square minus 2x plus 1। कितना हो जाएगा? 2x square इधर जाकर या इसको इधर ले आइए, minus 2x square minus 4x plus 2x minus 2x plus 2 minus 1 is plus 1 is equal to 0। so minus साइन को कॉमन ले लेंगे, जो इधर जाके 0 हो जाएगा, हमें ऑब्टेन हो जाएगा 2x square plus 2x minus 1 is equal to 0। so yes, it is a quadratic इक्वेशन। बाकी सब आप चेक करिए और फाइंड आउट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू -2 उसका सोल्यूशन है या नहीं है। सो अगर x इज इक्वल टू -2 सोल्यूशन होगा तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, -2 स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 plus 8 ये हो गया हमारे पास 16 which is not equal to 0। so no, x is equal to -2 is not a root of the equation। Question number 10, assertion and reason। Assertion is 5x square plus 14x plus 10 is equal to 0 and नेचर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लिखा हुआ है assertion ये है that it has no real roots। For no real roots we need to find out the discriminant। so b square minus 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। b square minus 4 into a into c, 196 minus 200 is -4। since b square minus 4ac is less than 0, so it has no real roots। so assertion is correct and reason, ax square plus bx plus c is equal to 0 has no real root if b square minus 4ac is less than 0। obviously अब इन्होंने इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, that b square minus 4ac should be less than 0। एग्जाम में इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को इधर आकर के 4ac इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये और ये एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। so option assertion and reason both are true and reason is correct explanation of the assertion। Question number 12, a quadratic equation ax square plus bx plus c has real roots। real roots कब होंगे? discriminant की situation क्या है, b square minus 4ac is greater than 0, it will have equal real roots and if greater than 0 distinct real root है, तो दोनों ही real ना, तो combine कर दीजिए। for real roots b square minus 4ac is greater than or equal to 0, greater than equal to 0, d is greater than equal to 0, option b is correct। Question number 13, find the discriminant of equation। इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b, ब्रैकेट ओपन, 10x minus 6, शिफ्टिंग करते 10x से 10x कट गए, x स्क्वायर 25 plus 31 is equal to 0, so it is a quadratic equation। b square minus 4ac is, where is b? so ऐसा नहीं है कि अगर x का कोएफिशिएंट x नहीं है तो उसको हम ये अज्यूम कर लेंगे कि है ही नहीं, तो 0 into x बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाएगी ना, सिर्फ यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। so b square is 0 square minus 4 into a into c, so obviously कितना हुआ, 0 minus 124, तो 0 minus 124 equal to 0 नहीं करना, सॉरी this is minus 124। since b square minus 4ac is less than 0, it will have no real roots। 14th question, x square plus 1 square minus x square is equal to 0 has
4 रूट्स, 2 रूट्स, नो रूट और 1 रूट। सिंस द इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी पहले, कौन सी इक्वेशन बन रही है उसके हिसाब से। अगर लीनियर इक्वेशन है तो 1 0, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस, क्यूबिक है तो 3 जीरोस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये कौन सी इक्वेशन बन रही है। इल्यूजन में नहीं आना, प्रॉपर सॉल्व करके देखना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, x4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 4, so it will have 4 real roots. 15th question, is 0.2 a root of equation? क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ के देखिए और आप साथ साथ बीच में बोल भी सकते हैं, उससे आप कनेक्टेड रहेंगे, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। सो 0.2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, x की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। 0.2 स्क्वायर माइनस 0.4, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 0.2 स्क्वायर इज, अभी देखो 0.2 का स्क्वायर देखने में क्या लग सकता है कि 0.4 है, बच्चे इमीडिएटली इसको ऐसे या नो करके चल देंगे, ठीक है। तो 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, कितना हो गया माइनस 0.3640 हो गया ना, 40 माइनस 4 36। सो इट इज नॉट a zero. 16th question. Question number 16. If x square plus y square is equal to 25 and xy is equal to 12, what will be the value of x? So substitute कर लेते हैं। xy is equal to 12, so y is equal to 12 by x. Put कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यू को। Implies that x square plus 12 by x whole square is equal to 25. Opening the bracket, x square plus 144 upon x square is equal to 25. LCM ले लो, x raised to power 4 plus 144 is equal to 25. x square उधर चला जाएगा, x raised to power 4 ये वापिस इधर आ जाएगा, plus 144 is equal to 25 x square. So x4 minus 25x square plus 144 is equal to 0. अब जब कोई पोजीशन यहाँ पर इस तरीके से आ जाए कि x4 minus x square, अब ये इसका स्क्वायर लग रहा है, अगर यहाँ पे a होता और यहाँ a स्क्वायर होता तो क्वाड्रेटिक बन गई थी ना, इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। That x square is equal to a. So we will get that a square minus 25a plus 144 is equal to 0. Immediately क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। 16 9 144, so a square minus 16a minus 9a plus 144 is equal to 0. So a into a minus 16 minus 9 into a minus 16 is equal to 0. So a minus 16 into a minus 9, so either a is equal to 9 or a is equal to 16. Now a is x square, so x square is equal to 9 and x square is equal to 16. So x is equal to plus minus 3 or x is equal to plus minus 4. So plus 3 plus 4 minus 3 minus 4, ये 4 ऑप्शंस हैं क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे पास सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव 2 कॉलम्स। इन कॉलम 1 इक्वेशन गिवन है और कॉलम 2 में सॉल्यूशंस गिवन है। आपको चारों सॉल्व करके मैच करने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म स्प्लिट से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 2x plus 2 is equal to 0 are imaginary. Imaginary means do not exist, no real roots are present. So b square minus 4ac चेक करेंगे वैल्यू, if it is less than 0
रूट्स आर इमेजिनरी। चेक करके आप इजीली बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट होता है। ट्रू है क्या फॉल्स है? क्वाड्रेटिक के तो मिनिमम 2 होते हैं, क्योंकि डिग्री 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, सो दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20, if the value of discriminant is equal to 0 then the equation has real and distinct root। इक्वल टू 0 होगा तो कैसे रूट होते हैं? इक्वल टू 0 में इक्वल रूट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी फॉल्स है। कल के वीडियो में, कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा करेंगे और 15 डेज में 15 चैप्टर पूरे तैयार करने हैं। आई होप आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप है उनके साथ भी आप डिस्कस करो, उनको भी शेयर करो और साथ में इन्वॉल्व कर लो। इसके बाद मैं व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट या ग्रुप बना करके जैसे जैसे आप लोग बोलेंगे, अभी तक 15-16 स्टूडेंट्स तैयार हैं, इन सबकी एक एक्सप्री बोर्ड से पहले मैं क्लासेस लेकर के एक और सीरीज शुरू करूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बहुत मेहनत करिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।